یہ کہانی ایک ایسے راز کی ہے جو اگر وقت پر نہ کھلے تو کئی زندگیاں اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے۔ عامر کئی دنوں سے اپنے دوست حسن کے گھر میں قیام پذیر تھا۔ وہ ایک اہم کاروباری معاملے کے سلسلے میں شہر آیا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر اسے ایک ایسی جذباتی الجھن میں مبتلا کر دے گا جہاں ہر فیصلہ کسی نہ کسی کا دل توڑ سکتا تھا۔ فریحہ حسن کی بیوی تھی، ایک نہایت سادہ، باوقار اور خوبصورت لڑکی جس کی آنکھوں میں ایک خاموش سی اداسی بسی رہتی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر لفظ اس کا ساتھ نہ دیتے ہو۔ وہ دن بھر گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، ہر چیز کو سنوارتی مگر خود کے اندر بکھری ہوئی محسوس ہوتی۔ حسن اکثر گھر سے باہر رہتا، فون پر مختصر بات کر کے اپنی ذمہ داری پوری سمجھ لیتا، اور فریحہ ہر بار اس کی باتوں پر یقین کر کے خود کو تسلی دیتی رہتی۔ عامر جب بھی اسے دیکھتا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا درد ابھرتا۔ وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ یہ صرف ہمدردی ہے یا اس سے کچھ بڑھ کر۔ ایک رات کا وقت تھا جب خاموشی پورے گھر پر چھائی ہوئی تھی، اور عامر اپنے کمرے میں لیٹا نیند کی کوشش کر رہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے فریحہ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا خوف اور آنکھوں میں جھجک تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ اسے نیند نہیں آ رہی اور وہ ڈر محسوس کر رہی ہے۔ عامر نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اپنے کمرے میں چلی جائے، وہ سب ٹھیک ہے، مگر اس کے دل میں ایک بے چینی سی جاگ اٹھی۔ کچھ دیر بعد وہ خود بھی اٹھا اور اس کے کمرے کے دروازے تک جا پہنچا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ واپس چلا جائے، مگر پھر اس نے دروازہ ہلکا سا کھولا۔ فریحہ کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ رک گئی اور دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی کہ اسے واقعی بہت ڈر لگ رہا تھا۔ عامر نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ آرام سے سو جائے، وہ وہیں موجود ہے۔ فریحہ بستر پر لیٹ گئی، مگر عامر کے دل میں ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا کہ یہ سب غلط ہے، وہ اپنے دوست کے گھر میں مہمان ہے اور اسے اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے، مگر دل کبھی کبھی عقل کی نہیں سنتا۔ اسی کشمکش میں رات گزر گئی۔ اگلی صبح عامر جلدی اٹھ کر گھر سے نکل گیا۔ اس کے ذہن میں کئی سوال گردش کر رہے تھے۔ وہ حسن کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ کیسا شوہر ہے جو اپنی بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر کہیں اور مصروف ہے۔ اسی سوچ میں وہ ایک ہوٹل پہنچا جہاں اسے معلوم ہوا کہ حسن وہیں ٹھہرا ہوا ہے۔ اس نے اس سے ملنے کی کوشش کی مگر ہوٹل کے عملے نے اسے روک دیا۔ یہ بات عامر کے شک کو مزید گہرا کر گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ حسن کچھ نہ کچھ ضرور چھپا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے کام کے سلسلے میں ایک پراپرٹی ڈیلر اسلم رحمانی سے ملنے گیا، جہاں ایک اور حیران کن حقیقت اس کے سامنے آئی۔ وہاں ایک عورت موجود تھی جسے وہ پہلے حسن کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ وہ اسلم کی بیوی ہے۔ اس لمحے عامر کو لگا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ اسے احساس ہوا کہ حسن ایک ایسے فریب میں مبتلا ہے جہاں ہر چیز جھوٹ پر قائم ہے۔ اس کے دل میں غصہ بھی تھا اور افسوس بھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر فریحہ کو اس سب کا علم ہو گیا تو اس پر کیا گزرے گی۔ وہ ایک معصوم اور وفادار بیوی تھی جو اپنے شوہر کی محبت کے خواب دیکھ رہی تھی، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ عامر واپس گھر آیا تو فریحہ کو معمول کے کاموں میں مصروف پایا۔ وہ اس کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے عامر کو کھانے کے لیے بلایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی، اور خلوص دیکھ کر عامر کے دل میں اس کے لیے عزت اور بھی بڑھ گئی۔ اسی دوران فریحہ نے حسن کو فون کیا اور اس سے بات کر کے خوش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی، جیسے وہ اس کے آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر عامر کے دل میں ایک درد سا اٹھا۔ اسے لگا کہ وہ ایک ایسے سچ کو جانتا ہے جو اگر سامنے آ گیا تو یہ مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔
वो शदीद कश्मकश में मुब्तला हो गया। एक तरफ उसका दोस्त हसन था और दूसरी तरफ एक बेकसूर औरत की जिंदगी। वो सोचता रहा कि क्या उसे सच बता देना चाहिए या खामोश रहना चाहिए। इसी दौरान उसने हसन से राब्ता किया और उसे सख्ती से कहा कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। उसने उसे खबरदार किया कि अगर उसने फरीहा के साथ इंसाफ ना किया तो वो सब कुछ बता देगा। हसन ने बात को हल्के में लेने की कोशिश की, मगर आमिर इस बार संजीदा था। वो जान चुका था कि खामोशी भी बाज़-औक़ात जुर्म बन जाती है। अब वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से वापस जाना मुमकिन नहीं था। उसे फैसला करना था कि वो दोस्ती निभाए या सच्चाई का साथ दे। फरीहा अपनी दुनिया में खुश रहने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके गिर्द झूठ का जाल बुना जा चुका था और आमिर उस जाल को तोड़ने की ताकत रखता था, मगर उसके नताइज से खौफजदा था। वक्त गुजर रहा था और हर गुजरता लम्हा उसके दिल पर बोझ बढ़ा रहा था। वो जानता था कि एक दिन ये सच सामने आकर रहेगा। सवाल सिर्फ ये था कि वो दिन कब आएगा और उसके बाद क्या बाकी बचेगा, मोहब्बत, दोस्ती या सिर्फ पछतावा। आमिर इस रात देर तक जागता रहा। इसके जहन में ख्यालात का एक तूफान बरपा था जो किसी सूरत थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो बार बार यही सोच रहा था कि अगर उसने सच ना बताया तो वो खुद भी इस धोखे का हिस्सा बन जाएगा, और अगर बता दिया तो शायद सब कुछ बिखर जाएगा। अगली सुबह फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। फरीहा हस्बे मामूल जल्दी उठ गई थी और किचन में मसरूफ थी। इसके चेहरे पर एक हल्की सी खुशी थी, क्योंकि हसन ने उसे वादा किया था कि वो जल्द वापस आएगा। आमिर जब किचन में आया तो उसने फरीहा को चाय बनाते देखा। उसने मुस्कुरा कर सलाम किया और आमिर के लिए कप तैयार कर दिया। इस लम्हे आमिर को लगा कि ये सादगी और खुलूस किसी भी सच से ज्यादा कीमती है, मगर फिर उसे वो सब याद आ गया जो वो जान चुका था। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि अब मजीद खामोश रहना दुरुस्त नहीं होगा। उसने नाश्ता किया, मगर हर लुकमा उसे बोझ लग रहा था। इसके बाद वो सीधा हसन से मिलने के लिए निकल गया। इस बार उसके कदमों में हिचकिचाहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सख्ती थी। वो दोबारा उसी होटल पहुंचा और इस बार उसने किसी की परवाह किए बगैर ऊपर जाने की कोशिश की। कुछ बहस के बाद वो हसन के कमरे तक पहुंच ही गया। दरवाजा खुला तो सामने हसन था, जो उसे देखकर चौंक गया। आमिर ने बगैर किसी तमहीद के उसे अंदर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। इसके लहजे में वो साफ झलक रहा था। इसने हसन को सब कुछ बता दिया कि वो फरीदा की हकीकत जान चुका है। वो उसके दूसरे ताल्लुकात के बारे में भी आगाह है। हसन पहले तो इनकार करता रहा, मगर जब आमिर ने तफसील से सब कुछ बयान किया तो उसका चेहरा उतर गया। इसने बात को संजीदगी से लेने के बजाय हल्का बनाने की कोशिश की, मगर आमिर उस बार किसी भी बहाने को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसने साफ कह दिया कि या तो वो फरीहा के साथ इंसाफ करे या फिर वो खुद सच बता देगा। हसन ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की और फिर एक सर्द लहजे में कहा कि उसे फरीहा से कोई खास लगाव नहीं रहा। वो उससे अलग होना चाहता है और अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। ये सुनकर आमिर के दिल में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। उसे लगा जैसे किसी ने एक मासूम जिंदगी को महज एक बोझ समझ लिया हो। उसने हसन को आखिरी बार समझाने की कोशिश की, मगर हसन के रवैये में कोई तब्दीली न आई। आखिरकार आमिर वहां से निकल आया। इसके कदम भारी थे, मगर दिल में एक फैसला पुख्ता हो चुका था। वो सीधा घर वापस आया। फरीहा दरवाजे पर ही उसे मिली। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसने खुशी से बताया कि हसन कल वापस आ रहा है। ये सुनकर आमिर के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। उसे लगा जैसे वक्त उसके हाथ से निकलता जा रहा है। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने फरीहा को बैठने के लिए कहा। उसके लहजे में संजीदगी थी जो फरीहा ने फौरन महसूस कर ली। वो उसके सामने बैठ गई और परेशानी से उसकी तरफ देखने लगी। आमिर ने गहरी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता उसे सब कुछ बताना शुरू किया। पहले तो फरीहा को यकीन न आया।
उसने बार बार कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हसन ऐसा नहीं कर सकता। मगर जैसे जैसे आमिर ने तफसील बयान की, उसके चेहरे का रंग बदलने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके हाथ कांपने लगे। उस लम्हे उसकी दुनिया जैसे टूट गई थी। वो खामोश होकर बैठी रही, जैसे अल्फाज उसका साथ छोड़ गए हो। आमिर ने उसे संभालने की कोशिश की, मगर वो अंदर से टूट चुकी थी। कुछ देर बाद वो उठकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। आमिर बाहर खड़ा रहा, मगर उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वो जानता था कि सच कभी कभी सबसे बड़ा जख्म बन जाता है। रात बहुत भारी गुजरी। अगली सुबह घर में एक अजीब सी खामोशी थी। फरीहा कमरे से बाहर नहीं निकली। आमिर ने दरवाजा खटखटाया, मगर कोई जवाब ना मिला। कुछ देर बाद दरवाजा खुला तो वो सामने खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मजबूती थी। उसने आहिस्ता से कहा कि वो अब मजीद किसी झूठ में नहीं जीना चाहती। वो हसन का सामना करेगी। शाम को हसन वापस आया तो माहौल पहले जैसा नहीं था। फरीहा उसके सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं बल्कि एक सवाल था। हसन ने बात को टालने की कोशिश की, मगर फरीहा ने साफ अल्फाज में उससे जवाब मांगा। आखिरकार हसन खामोश हो गया और उसने सच कबूल कर लिया। इस लम्हे सब कुछ खत्म हो गया। वो रिश्ता जो एतमाद पर कायम था अब टूट चुका था। हसन ने अलहदगी की बात की और फरीहा ने बगैर किसी बहस के उसे कबूल कर लिया। ये फैसला आसान नहीं था, मगर उसने खुद को मजबूत रखा। कुछ दिन बाद हसन घर छोड़कर चला गया। घर अब खामोश हो चुका था, मगर उस खामोशी में एक सच्चाई थी। आमिर अब भी वहां मौजूद था, मगर उसका दिल बोझल था। वो फरीहा के करीब आना चाहता था, मगर उसे वक्त देना जरूरी था। आहिस्ता आहिस्ता फरीहा ने खुद को संभालना शुरू किया। उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखना शुरू किया। एक दिन वो आमिर के पास आई और उसने शुक्रिया अदा किया कि उसने सच बताया। अगरचे ये सच तकलीफ दह था, मगर इसने उसे एक झूठ से आजाद कर दिया। आमिर ने उसकी बात सुनी और खामोशी से मुस्कुरा दिया। उसके दिल में अब भी जज्बात थे, मगर उसने जल्दी ना करने का फैसला किया। वक्त गुजरता गया और दोनों के दरमियान एक नया रिश्ता परवान चढ़ने लगा, जो जल्दबाजी या ख्वाहिश पर नहीं बल्कि सच्चाई और एहतराम पर कायम था। फरीहा ने अपनी जिंदगी को नए अंदाज में जीना शुरू किया और आमिर इसके साथ एक मजबूत सहारे की तरह खड़ा रहा। इस कहानी का अंजाम ये नहीं कि सब कुछ पहले जैसा हो गया, बल्कि ये है कि सच ने सब कुछ बदल दिया। और कभी कभी बदल जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि झूठ पर बनी दुनिया देर तक कायम नहीं रह सकती।